أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. محمد وجل فرجہ. نور کا اتباع اور ظلمات سے براءت. آیہ نور سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 36 پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اور ان کی پہچان یہ بتلائی گئی کہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام جس میں تسبیح پروردگار پڑھی جاتی ہے. 2 دن سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے اور کل کی گفتگو کے بعد بھی جب ہم نے نماز کے حوالے سے گزارشات عرض کی، سادہ اور مفید نسخے کہ اپنی نماز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم نے عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں آپ سے فضائل عرض کیے. ہم نے اذان اور اقامت جو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کی 2 صفوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے مشرق سے مغرب تک. ہم نے عرض کیا کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی. ہم نے عرض کیا کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالیے، منہ میں پانی ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان الرجیم کا غلبہ آپ پر نہیں ہونے دے گا. ہم نے عرض کیا کہ نماز کی پہلی رکعت میں ممکن ہو سکے الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کیجیے. ہم نے عرض کیا کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھیے. بی بی کے نام پر ایک اور صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کل کی گفتگو کے بعد بھی بہت زیادہ رسپانس تھا مومنین کا، اور اس بات پر کہ مولانا صاحب نماز کی کیفیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ بیان فرمائیے. تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قبول ہی متقین سے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور متقی ہونے کا پوٹینشل اسی میں ہوتا ہے جو امام المتقین کو اپنی حیات کا مالک مانتا ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے، بے شک اسی میں پوٹینشل ہے کہ وہ متقی ہو سکتا ہے. بے شک. اور دیکھیں تقوی جو ہے، متقی بننا، یہ کنسٹرین نہیں ہے، یہ امیونٹی ہے. واہ 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 واہ. تقوی محدودیت نہیں ہے، تقوی حفاظت ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے گا، کیا ہر وہ محدودیت جو آپ کی حفاظت کے لیے ہو وہ بری ہوتی ہے؟ آپ شوز پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ واہ. کیوں پہنتے ہیں آپ شوز؟ نہ پہنے، محدود ہو رہا ہے آپ کا پیر. جی کیونکہ یہ حد بندی آپ کو بہت سی ٹھوکروں سے بچاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بعد سبحان اللہ. ہر محدودیت بری نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ اپنی آزادی کو دین خدا میں محدود کر دیں، اور کیجئے گا اگر آپ اپنی فریڈم کو دین خدا کے اندر محدود کر دیں تو یہ 1000 سجدوں سے آپ کو بچا لیتی ہے جو آپ کو غیروں کے سامنے کرنے پڑتے ہیں. سبحان اللہ. امام المتقین علیہ السلام صلوات. اگر آپ نے اپنی آزادی کو دین کے اندر آپ لے آئے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ. اچھا، اس کے انٹلیکچوئل اسپیکٹ پہ بھی غور کیجئے گا. دیکھیں اہل دل ایک مثال بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بوتل کوئی بھری ہوئی ہو اور اسے خالی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا منہ جھکا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ نے بوتل کا منہ جھکا دیا وہ خالی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کا دل ہے، جو آپ کا دل ہے نا، وہ اس میں بھی دنیا کے غم، غصہ، پریشانیاں، تانے، تذلیلیں، حقارتیں، کبھی چپتے ہوئے الفاظ، کبھی دل خون کر دینے والے رویے، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں، جس سے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. کبھی فیملی کے مسائل ہیں، کبھی معاشی مسائل ہیں، کبھی جاب کے معاملات ہیں، کبھی کسی سے آپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، تو آپ کا دل بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. اب اسے خالی کرنا ہے. خالی کیسے کیا جائے؟ خدا کی بارگاہ میں اس دل کو جھکا دیجئے. سبحان اللہ. خدا کی بارگاہ میں اس دل کو جھکا دیں گے، اس سے ظلمات خالی ہونے لگیں گے، نور خدا آپ کے وجود میں تجلی کرنے لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ وہ نسخہ ہے، یہ ہم اپنی جانب سے آپ سے نہیں عرض کر رہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اس نسخے کو. سورہ حجر کی آیت نمبر 97، 98، 99.
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि क़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हम बहुत अच्छी तरीके से दकीक इत्तला के साथ जानते हैं कि आपका दिल भर जाता है बहुत से लोगों की बातों पर। अल्लाहु अकबर, क्या कहना, सुभान आपके दिल पर जख्म लगता है जब लोग आपको मजनून कहते हैं, जब लोग आपको शायर कहते हैं, लोग आपको नौजुबिल्लाह काहिन कहते हैं, और सो कॉल मुसलमान भी आपको हिज़यान और निस्यान की तोहमत लगाते हैं आप पर। अल्लाहु अकबर। तो आपका दिल जो है वो भर जाता है, हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका दिल भर जाता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। सुभान अल्लाह, हमें इत्तला है कि आपका दिल भर जाता है इन लोगों की बातों से, बस अपने सर को सजदे में रख दीजिए। सुभान अल्लाह। अपने रब की तस्बीह कीजिए, अपने सर को सजदे में रख दीजिए। भाई क्या ताल्लुक है लोगों के तानों का रब के सामने सजदा करने से? वाह वाह, इसलिए कि आपका दिल खाली हो जाता है इससे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप झुक जाते हैं रब की बारगाह में तो आपका दिल गोया आप फिर महसूस करने लगते हैं कि लोग कुछ भी कहते रहें, जमाना कोई भी बात कहता रहे, खास तौर पर अगर आप दीन के मामले पर अमल कर रहे हैं और जमाना आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है और आप हक की बात कर रहे हैं और बहुत से बातिलों का आपको सामना है, तो आपके दिल में जो एक गुबार बैठ गया ना, एक जो सख्ती बैठ गई, जब आपने सजदा किया, इसे उलट दिया सारा रब की बारगाह में, तो आप सजदे के आलम में उस यकीन पर पहुंच जाते हैं कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। बेशक, बियदिकल खैर, सारा खैर उसके हाथ में, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। देखिए ये आयत भी सूरह आले इमरान की है जो लफ्ज कुल से शुरू होती है, यानी पैगंबर को हुक्म है कि आप ये कहिए, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आप कह दीजिए कि तू मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहता है मुल्क दे देता है, जिससे चाहता है तू मुल्क ले लेता है, तुइज़्ज़ु मन तशा जिसे चाहता है इज्जत दे देता है। मौलाना उसने मेरे लिए कुछ कह दिया, उसने मुझे जलील करने की कोशिश की, कोई आपकी इज्जत ले नहीं सकता आपसे। अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। दुनिया के चंद रोजा मामलात को ना देखें, ये देखें दायमी इज्जत किसके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अजअल इंदका वजीहन बिल हुसैन फी दुनिया वल आखिरह। ज़ियारत आशूरा, परवरदिगार तू मुझे आबरू अता फरमा दे अपने नजदीक दुनिया और आखिरत में हुसैन इब्न अली के सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है दायमी इज्जत। हुजूर से कहा कि आप कहिए, कुल आप कहिए। देखिए बहुत खूबसूरत है, ये एक दुआ है ना, हुजूर से कहा जा रहा है आप कहिए ये। इस तरह खत्मी मर्तबत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पर सलावत भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये खत्मी मर्तबत की ये दुआ सबको याद होगी, सूरह ताहा में वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह, आयत नंबर 114। ये भी रब्बी ज़िदनी इल्मा जो हम कुनूत में पढ़ते हैं, इसके आगाज में भी कुल है। ए रसूल आप कह दीजिए, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूं आपको, आप कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक और मशहूर दुआ सूरह इसरा, वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए कि तू मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा दे और सच्चाई के साथ खारिज फरमा दे। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने पास से मेरे लिए एक सुल्तान, एक ताकतवर मददगार बना दे। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई आता है यहाँ पर फतवा लगाने कि या रसूल अल्लाह आप फकत अल्लाह से मदद मांगिए, फकत या अल्लाह मदद कहिए, ये अली को मददगार क्यों मांग रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह इसरा की आयत का कुल आप कह दीजिए कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सूरह मोमिनून में फिर फरमाया कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए रसूल आप दुआ मांगिए, आप कह दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं कि परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा और रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। मैं एक जुमला करना चाहता हूं, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और कितने आपको मवारे सुना दूं, कितने पाबंद है रसूल के दुआ भी अपनी मर्जी से नहीं मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने पाबंद खुदा है। कल हमारी बात शान रिसालत पर खत्म हुई थी कि जो गदीर वाले नूर का इत्तिबा करता है वो उस रसूल को मानता है जो अली ने हमें सिखलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली ने हमें वो रसूल सिखलाया है कि जो कुरान में मौजूद है। बेशक, अपनी मर्जी से दुआ भी ना मांगे,
दुआ भी वही मांगेगा जिसकी वही नाजिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है। शान रिसालत पर मिलकर और सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पाबंद है रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के, जो अल्लाह कहता है वही मांगते हैं। क्या कहना है? मैं सुभान अल्लाह यही तो अर्ज करना चाह रहा हूं, जो दुआ भी अपनी मर्जी से ना मांगे, वो रसूल ये कह रहा है कि ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून है। माशाअल्लाह, क्या कहना? रसूल जो रब्बे ज़िदनी इल्मा जैसा मुख्तसर जुमला और दुआइया जुमला, वो भी जब अल्लाह कहे तो कहे कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, वो कह रहा है ऐ अली आपका गोश्त मेरा गोश्त है, आपका खून मेरा खून है। वल ईमान मुखालितुल लहमका व दमका मखालत लहमी व दमी, ऐ अली ईमान आपके गोश्त खून में वैसे मिल चुका है जैसे मेरे गोश्त खून में मिल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अली के नाम पर बोलना सबको नसीब भी नहीं होता। वाह 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 अली के नाम पर बोलना तो सबको नसीब नहीं होता ना। वो जब आप मजलिस में होते हैं तो हाथ उठाकर दाद देते हैं। सुभान अल्लाह। अली के नाम पर हाथ खुलता ही उसका है, चाहे मजलिस में हो चाहे किसी और कैफियत में हो, जैसे खैरात ज़हरा अता कर रही हो। सुभान अल्लाह। अभी क्या कहने, क्या कहने? सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। फुरात का पानी उबलते हुए कूफा में आने लगा। लोग पहुंचे अमीरुल मोमिनीन के पास, या अली बचा लीजिए। अच्छा, मौला जो है वो पानी के पास गए। अब फुरात का पानी जो है वो तकरीबन सैलाब बनकर आ रहा है कूफा में, तो मौला गए पानी के पास, वुजू फरमाया, सल्ला मुनफरिदन, फुरादा नमाज पढ़ी और फिर अपने असा को पानी पर मारा। अल्लाहु अकबर। मूसा ने असा को पानी पर मारा था, मूसा के लिए रास्ता खुल गया था। ये फखरे मूसा है। असा को पानी पर मारा और कहा उनकुस बिइज़्निल्लाह व मशीयती, अल्लाह के इज़्न और मशीयत से वापस चला जा। सुभान अल्लाह, बिइज़्निल्लाह कहा वापस चला जा। अच्छा, अब ये वाकया मैं मुकम्मल करता हूं, लेकिन साथ में एक और बात आ गई। चूंकि वर्ल्ड वाइड ये तकरीर सुनी जा रही है तो सवालात भी इस तरह से बहुत हैं, और कुछ जो गैर अहम सवालात हैं उनको तो मैं हैसियत देता नहीं हूं, लेकिन कुछ सवालात अपनों से और कुछ गैरों से। तो जब जो सवालात कुछ गैरों से ऐसे आ रहे हैं कि जब तक उनकी वजाहत ना की जाए और वो सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं तो कहीं हमारे मोमिनीन कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक इमाम हुसैन के एक छोटे से खादिम होने की ऐसे से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने जहनों को तो क्लियर कर दूं, गैरों का हमसे ताल्लुक नहीं। तो एक सवाल ही आया, चंद दिनों कबल हमने ये जुमला अर्ज किया था कि एक नामानुस शख्स से सवाल आया कि हमने जब ये जुमला कहा कि हर शहीद जिंदा है और अल्लाह के पास से रिस्क पा रहा है, लेकिन सैयदुश शुहदा बाइज़्न खुदा रिस्क और हयात बांटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अगर हमने कहा था बाइज़्न खुदा, तो रिस्क तो देता अल्लाह है, लेकिन तो सवाल ये आया कि इमाम हुसैन कैसे देने लगे। अल्लाहु अकबर। आपने कैसे कह दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिस्क बांटने वाले। जैसे ही ये मुहर्रम शुरू हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे, वहां से टपक पड़े, मजलिस क्यों करते हो भाई, अलम क्यों निकालते हो, ताबूत क्यों सजाते हो, जुलजना को देखो तो निकाह बातिल हो जाता है। तुम ही सवाल करते रहोगे, हम जवाब देते रहेंगे, यकीन जानो क़यामत तक देते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन मैंने अर्ज कर दिया कि हम अबू जहलों के मानने वाले नहीं है, हम अबुल हसन के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो रिस्क देता है, तो हुसैन आपने कैसे कह दिया, हालांकि बिइज़्न खुदा कहा था, लेकिन चले रिस्क तो अल्लाह देता है, बेशक अल्लाह देता है, लेकिन इस्लामियात की 5वीं किताब में क्या नहीं पढ़ा था कि 4 बड़े फरिश्ते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? सुभान अल्लाह। साथ चलिएगा, अब जब सवाल पूछा तो फिर जवाब भी मिलेगा कि इस्लामियात की किताब है, बच्चों की किताब में नहीं पढ़ा था 4 बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल। बेशक। अब जो लोग कहते हैं कि अलैहिस्सलाम फकत अंबिया के साथ लगाना चाहिए, उन्हें तो जिब्राइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सही। हम तो कह रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो एक वही पहुंचाता है, एक रिस्क तकसीम करता है, एक रूह कब्ज करता है, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। तो भाई वही तो अल्लाह नाजिल करता है, ये जिब्राइल कहां से आगे दरमियान में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत तो अल्लाह देता है,
मौत अल्लाह देता है ना, वो जिंदा से मुर्दा निकाल देता है, मुर्दा से जिंदा निकाल देता है। 2 मुहर्रम की मजलिस में पढ़ चुका हूं। तो मौत यकीनन अल्लाह देता, तो ये इजराइल कहां से आगे दरमियान में? वाह वाह वाह, रिस्क अल्लाह देता है, तो मीकाइल क्या करने आ गए यहाँ पर? सुभान अल्लाह, अलैहिस्सलाम मुकर्रब फरिश्ते हैं। बेशक। अब रिस्क तो अल्लाह ही देता है, लेकिन इन फरिश्तों को मामूर किया हुआ उसने बेशक, कि ये रिस्क बांटेंगे। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते हैं मुस्तफा के दर के खातिम। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान मीकाइल अलैहिस्सलाम बाइज़्न खुदा रिस्क तकसीम करते हैं, फरिश्ते मुस्तफा के दर के खातिम। तो खादिमों से रिस्क लेना तो समझ में आ गया, आकाओं से रिस्क लेने में मौत क्यों आ रही है? अज़मत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही? अच्छा, वो मौलवी साहब भी जो कहते हैं कि मांगो सिर्फ अल्लाह से, वो भी मस्जिद का चंदा किसी सेठ साहब के पास मांगने जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मांगो सिर्फ अल्लाह से, लेकिन मस्जिद का चंदा मांगने जाएंगे किसी सेठ साहब के पास। अच्छा, बेहतर है कि कह दिया जाए कि भाई अहले बैत अलैहिस्सलाम जब हम कहते हैं बाइज़्न खुदा अता करते हैं, अगर जब कलाम में जो बात हो रही हो, हमने कहा भी था, लेकिन और बेहतर है कि बाइज़्न खुदा कह के बात की जाए। लेकिन जनाब बात यह कि ये इतना अंडरस्टूड है कि इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सही। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं ना कि क्या दवा लिख कर दी थी डॉक्टर साहब आपने, ठीक हो गया मैं उस दवा से। तो ठीक दवा ने किया था या अल्लाह ने किया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हर जुमले में कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो जो बाइज़्न खुदा आपने दवा लिख कर दी थी और बाइज़्न खुदा मैंने खाई थी, तो बाइज़्न खुदा मैं ये कह रहा हूं कि बाइज़्न खुदा उस दवा ने मुझे शिफा दे दी। मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाह रहा हूं, मिलकर सलवात देते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बराए अज़मत अइम्मा ताहिरीन बुलंद तर सलवात। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं हर जुमले में डॉक्टर साहब जो बाइज़्न खुदा आपने दवा लिख कर दी थी, बाइज़्न खुदा मैंने खाई, बाइज़्न खुदा ये बात कह रहा हूं कि बाइज़्न खुदा मुझे शिफा मिल गई। नहीं, आप सीधा कह देते हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवा दी थी, उससे ठीक हो गया मैं। बस इसी तरह से हम भी कह देते हैं अली से मांगा था, दे दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको इतना जाहिल हो कि उसे ये समझाएं कि भाई इसने खुदा मैंने अली से मांगा था। तो अली वलीउल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसी होने की हैसियत से ला इलाहा इल्लल्लाह के इज़्न से अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात बार बार तकरार करने की जरूरत नहीं। एक हदीस सुनाता हूं आपको, किताब इलामुल वरा में है, फज़ल बिन हसन तबरसी की किताब है, आज से तकरीबन 1000 साल कदीमी किताब है। उसके सफ़ा नंबर 187 पे यह लिखा हुआ है कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा जलसा थुम्मा अरादा अन यक़ूम ला याख़ुज़ुहु बियदिही गैरु अलीय्यिन। मैं जितनी मर्तबा इसे पढ़ूं तो कम है, और झूम जाएंगे आप इंशाअल्लाह जब आप तक बात पहुंचेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा होते थे और थुम्मा अरादा अन यक़ूम, उसके बाद जब वो इरादा करते थे कि वो खड़े हो जाएं, ला याख़ुज़ुहु बियदिही, किसी का हाथ वो नहीं पकड़ते थे गैर अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, जब उठ रहे होते थे तो अली के अलावा किसी और का हाथ पकड़ के नहीं उठते थे। मैं शायद एक और हवाले से नया नुक्ता हो जो आप तक ना पहुंचो, रसूल अली के सिवा किसी का हाथ पकड़ के उठते ही नहीं थे, ताकि बाद में कोई एहसान ही ना जतला सके। गैर अलीय्यिन, अली के सिवा किसी का हाथ पकड़ते ही नहीं थे वो। आज मैं रिस्ट वॉच मेरे हाथ में नहीं है, लिहाजा मुझे कहीं नीचे बार बार टाइम देखना पड़ रहा है कि मैं अपने टाइम में बात खत्म करूं इंशाअल्लाह। व इन्ना अस्हाबन नबी कानू यारिफूना ज़ालिका लहू, और लिखते हैं वो कि अस्हाब नबी भी इस बात को जानते थे। अला याखुज़ु बियदि रसूलुल्लाह गैरहु, तो वो अली के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो अपना हाथ रसूलुल्लाह को दे सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौला अली के नाम पर बोलना ये भी एक सआदत है, और जो सआदत है उसके लिए मैं एक वाक़या सुना रहा था आपको। और ये सारी बातें आ गई कि किसी ने सवाल किया तो किसी का जवाब, खैर बहुत उम्दा और मुफीद बातें थी जो आप तक पहुंच गए इंशाअल्लाह। तो कूफा में सैलाब आया और फुरात का पानी शहर में आने लगा। मौला अली नहर के पास गए,
यहां तक वाकया पढ़ा था मैंने। 2 रकअत नमाज पढ़ी सल्ला मुनफरिदन, 2 रकअत फुरादा नमाज पढ़ी, अपने असा को मारा पानी पर और कहा उनकुस बिइज़्निल्लाह व मशीयती। यहां सारी बात शुरू थी बिइज़्निल्लाह। कि किसी ने सवाल कर दिया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे रिज़्क़ तकसीम करते हैं, हमने कहा बिइज़्निल्लाह, जैसे मीकाइल तकसीम करते हैं, मीकाइल खादिम है, हुसैन आका है। सुभान अल्लाह। उनकुस बिइज़्निल्लाह। शेख मुफीद ने इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा, जब सुनाऊं किताब अल इरशाद में, कि अल्लाह के इज़्न से है पानी चला जा, वापस चला जा। तो जैसे पानी वापस जाने लगा, फगाज अलमा, पानी तो वापस चला गया, हत्ता बदतिल हैतान, लेकिन जो मछलियां थी वो ऊपर आ गई और मछलियों ने ऊपर आकर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मछलियों ने सलाम किया अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अच्छा, जब अली को सलाम किया होगा मछलियों ने, तो भाई खुदा का हुक्म है ना, खुदा का हुक्म सूरह निसा में आयत नंबर 86 में, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा। जब भी कोई तुम्हें सलाम करे तो उसे या तो वैसा ही जवाब दो या उससे अच्छा जवाब दो। सुभान अल्लाह, सही। अहसना मिनहा, या उससे बेहतर जवाब दो। अगर आपसे कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कोई आपसे कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपसे कहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उसकी भी हद मौला ने बयान कर दी कि जो सलावत की हद है वो यही है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए कि उनके किसी साहबी ने व तहय्यातुहू और आगे कुछ अल्फाज का इजाफा किया। मौला ने कहा कि नहीं, हर वो लफ्ज, ये मैं एक हसास जुमला भी कहने लगा हूं, हर वो बात जो सही होती है हर जगह कहने वाली नहीं होती, चाहे नमाज में हो चाहे किसी और इबादत में हो। जहां पर उन्होंने जैसा कहा है वैसा कहिए। तो मौला ने कहा कि नहीं, इसकी हद यह है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। हम तो जब सलाम करते हैं तो सलाम में भी जो स्टेटस है वो देखा जाता है। सुभान अल्लाह। किसी दुनियावी स्टेटस के एतबार से कोई कम आदमी है, गरीब सा आदमी है बेचारा, उसने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो वो 1.5 इंच की गर्दन हिलाते हैं फकत। जी। अगर खास तौर पर किसी मुलाजिम ने सलाम किया, हदीस में आया है कि जो अपने दिल से तकब्बुर निकालना चाहता है उसे चाहिए पहले सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी सख्त। जरा अपने से छोटा कोई आदमी हो तो करके देखिएगा, शैतान कितना रोकेगा। सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम क्यों सलाम करो, वो सलाम करेगा तो जवाब दे देना, तुम्हें क्या जरूरत है। हदीस में आया है कि जो सवार है, यानी जिसके पास सवारी है, वो पैदल को सलाम करे, बेशक। जो बैठा हुआ है वो खड़े हुए को सलाम करे, यानी जिसके पास कोई अच्छा स्टेटस है वो उसे सलाम करे, कि जिसके पास कमतर स्टेटस है, बड़ा बच्चे को सलाम करे। फहय्यु बिअहसना मिनहा। तो जब सलाम कीजिए तो अच्छा, अगर किसी ने सलाम किया वो इस काबिल है, हम कहते हैं हाँ जी, जवाब भी नहीं देते। बाद लोग कहते हैं जी। और कोई ऐसा था कि जो हमारे बराबर के लेवल का था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, किसी को काम था हमसे, अच्छा हमें किसी से काम था, माजरत अगर मैं यूं कहूं तो हमें किसी से काम, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, को बहुत बड़ा आदमी था, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई ये सलाम का जवाब भी फर्क, उसमें स्टेटस का फर्क रखा हुआ है हमने। तो बहरहाल इसीलिए तो हम जब हुक्म है कि वैसा ही जवाब दो या उससे बेहतर जवाब दो, तो हम जब कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से उससे बढ़कर जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर। अल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीब। अल्लाह ने आगे भी आयत में कहा कि अल्लाह हर शय का हिसाब किताब रखने वाला है। अल्लाह जानता है तुमने किस नीयत से किसको सलाम किया है। तो भाई इसलिए हुक्म है कि सुबह शाम अपने मौला को सलाम कीजिए, ताकि जब सलाम करे तो उनका जवाब हमें मिल सके, और जो मौला के हकीकी सलाम का हकदार बन जाए वो हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाता है। फिर मछलियां ऊपर आ गई, उन्होंने मौला को सलाम किया, अली को सलाम किया। मछलियों ने जब सलाम किया होगा तो ज़ाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया। लेकिन आगे रिवायत में मैं कह रहा हूं अली के नाम पर बोलना सआदत है। वलम यंतिक मिनहा अस्नाफु मिन अस्सुमूक। कुछ ऐसी मछलियां थी जिन्होंने सलाम नहीं किया अली को। मछलियों ने सलाम किया अली को, कुछ मछलियों ने सलाम नहीं किया। जिन्होंने अली को सलाम नहीं किया, अल जर्री कैटफिश ने, वल मारमाही व जिम्मार। अच्छा, जैसे ही उन्होंने सलाम नहीं किया, फतअज्जब अन्नास ज़ालिक, लोग ताज्जुब में आ गए, पूछने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, इन्होंने आपको सलाम क्यों नहीं किया, बाकी मछलियों ने सलाम किया, ये मछलियां आपको सलाम क्यों नहीं कर रही। मौला ने कहा मैं बताता हूं जिन्होंने सलाम किया उन्होंने क्यों सलाम किया, और ये भी बताता हूं जिन्होंने सलाम नहीं किया उन्होंने क्यों सलाम नहीं किया।
सुभान अल्लाह। ये अली बतला सकते थे। अंतकल्लाहु ली मा तहुरा मिन अस्सुमूक, मौला ने कहा कि जिनकी विलादत में तहारत है, सुभान अल्लाह, क्या कहें, सुभान अल्लाह। जो मछलियां ताहिर हैं उन्होंने सलाम जब मुझे कि अंतकल्लाहु ली, अल्लाह ने उन्हें तौफीक अता की कि मुझे सलाम कर लें। अस्मत अन्नी मन हर्रमहु व नज्जसहु, और जो हराम और नजिस थी उनमें अहलियत नहीं थी कि वो मुझे सलाम कर सके। उन्होंने मुझे सलाम किया। जो हराम और नजिस थी उन मछलियों ने मुझे सलाम नहीं किया। भाई जब मछलियों का ये मामला है तो इंसानों का मामला खुद समझ लेना आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अज़मत अमीरे कायनात अली अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मामला ये है कि सारा के ये जो सारे मारिफ हैं, यानी कहने का मकसद है कि अमीरुल मोमिनीन की जो मोहब्बत है ये भी खास अल्लाह ने आपको सआदत अता की है। बेशक इस मोहब्बत के लिए इमामुल मुत्तकीन को जो मानने वाला है उसके दिल में कुछ जौहर तकवा होना चाहिए। और मैंने अर्ज किया कि वो जो जौहर तकवा है वो आपको महदूद करना नहीं, आपकी हिफाजत करना है। बेशक। और अगर किसी मुश्किल में आप आ रहे हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अगर आपका दिल भर जाता है इनकी बातों से, आप फिक्र ना कीजिए, आप सजदा कीजिए। आप एक तवील सजदा तो करके देखें अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह। बाद लोग कहते हैं कि वहां साहब हम तवील सजदा करें, हम क्या कहें, हमें समझ नहीं आता क्या कहें। मैं कहता हूं यही जो बात कह रहे हो ना मुझसे कि समझ नहीं आता, यही अल्लाह से कह दो। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह से यही कह दो कि परवरदिगार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं। सुभान अल्लाह। आप यकीन फरमाइए वहीं से तौफीक शुरू हो जाएगी, आप न जाने क्या कुछ अल्लाह से हम कलाम हो जाएंगे। इसलिए अगर जिंदगी में आदत रखें, ये सरकार खत्मी मर्तबत की हदीस भी है कि अपने गुनाहों के बोझ को हल्का करो तवील सजदों से। सुभान अल्लाह। अगर हो सके तो दिन में एक मरतबा कम से कम एक तवील सजदा किया कीजिए। अब आप उसमें चाहे जिक्र सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे पढ़ें, चाहे आप सुभानका या ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, कोई कुरान की आयत पढ़ रहे हो, कोई अल्लाह से मांग रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ रहे हो, कोई अपनी ज़बान में दुआ मांग रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये सजदा आपके दिल के गुबार को उलट देगा, नूरानियत लेकर आ जाएगा। कल इस पर इंशाअल्लाह और भी शायद बात करेंगे, और बाइज़्ने खुदा के जो मामला है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसीलिए तो है, ये जो हम गिरिया करते हैं ना, ये जब गिरिया करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। ये सब मारिफ है, बयान है सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब कुछ। गुलाम मोहम्मद कासिर एक शायर हैं, बहुत खूबसूरत मिसरे उनके, गालिबन अहले सुन्नत शायर हैं, लेकिन हुसैन पर मैंने अर्ज किया था किसी का कॉपीराइट तो नहीं है ना। बेशक बेशक। भाई हुसैन इब्न अली के लिए तो क्रिश्चियंस ने किताब लिखी है। जो एथिस्ट हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए, हमारे भी कोई शोरा गुजरे नामवर शोरा के जिनके लिए कहा जाता था कि कुछ मुल्हिदाना ख्यालात के हामिल हो गए थे। जब आप उनसे पूछिए कि भाई आप तो एथिस्ट तकरीबन बन चुके हैं, आप हुसैन के लिए शायरी क्यों कर रहे हैं, तो जवाब उनका भी यही होता था कि क्या करूं, हुसैन के सजदे आखिर को देख कर यकीन आ जाता है कि कोई ना कोई है खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई खुदा का वजूद ना हो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो कैसे मुमकिन है कि एक इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है सब कुछ, लेकिन अपने 6 महीने के बच्चे पे बात आ जाए, करील जवान पे बात आ जाए, हदिये के बहनों पर बात आ जाए, कौन बर्दाश्त करता है इसे। हुसैन इब्न अली का सजदा बतला रहा है कि है कोई रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह। इसके अलावा किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। ये दलील काफी, यकीन फरमाइएगा। तो गुलाम मोहम्मद कासिर वो अहले सुन्नत गालिबन शायर हैं। तो मैंने अर्ज किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबकी मिल्कियत है, सबकी मीरास है हुसैन। मैं कुरान लारैब है और हुसैन बेऐब है। कुरान अंबिया के वारिस है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो विरासत अंबिया की हुसैन तक पहुंची। कुरान लारैब है, हुसैन बेऐब है। सुभान अल्लाह। कुरान को मानने के लिए और कुरान पर यकीन रखने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। बेशक। और हुसैन को मानने के लिए नसब और शराफत इसका पाक होना जरूरी है बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या एक बात मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं उसके खुलासतन अर्ज करूंगा कि अमीरुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा था कि या अली आप का मर्तबा वो है
کہ لا युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ इल्ला मुनाफिक, आपसे कोई मोमिन उसके को बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। बेशक। आता ये कि शायद इमाम शाफी से जब पूछा गया था कि अली क़सीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत जहन्नम को तकसीम करेंगे तो ये कैसे होगा, तो उस वक्त उन्होंने जवाब ये दिया था कि क्या तुमने ये नहीं सुना, खुद मौला कायनात ने भी नहजुल बलागा में कहा हुआ है कि लौ ज़रबतु ख़ैशुमल मुमिन बिसैफ़ि हाज़ा अला युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी, अगर मैं अपनी तलवार से मोमिन पर ज़र्ब भी लगाऊं ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे तो मोमिन मुझसे नफरत नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। वलौ सबबतु दुनिया बितम्मातिहा अल मुनाफ़िक़ अला युहिब्बनी मा अहब्बनी, अगर दुनिया की सारी नेमतें मुनाफिक को भी दे दूं ताकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, नहीं करेगा मुझसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अभी होता आप किसी को कितना मना लीजिए, उसके दिल में अली आता ही नहीं है, इसलिए कि अली के वजूद के लिए दिल की तहरत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कभी ऐसा होता है कि जनाब एक शख्स जो कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई थोड़ी सी बात होती है उसके साथ, ऐसा लगता है कि नूर अली इब्न अबी तालिब उसके पूरे वजूद में जलवागर है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि है कोई रिस्क की तहरत उसमें ऐसी, कोई बात है ऐसी कि वलीउल्लाह से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इमाम शाफी ने कहा कि क़सीमुल जन्नत वन नार अली इब्न अबी तालिब है, वो ऐसे हैं। और मुनाफिक से कोई अली के अलावा, यानी अली से कोई मुनाफिक के अलावा बुग़्ज़ रख नहीं सकता, और अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत कर नहीं सकता। तो उन्होंने सवाल किया कि ऐनल मोमिन, मोमिन कहाँ जाएगा? बच्चे ने कहा फिल जन्नह। का मुनाफिक कहाँ जाएगा? का फिन्नार। का बस जब अली से फकत मोमिन मोहब्बत कर सकता है और मोमिन जन्नत में जाएगा, और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा और मुनाफिक जहन्नम में जाएगा, तो फिर फैसला हो गया कि मोहब्बत अली ही तो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तक़सीमुन नार वल जन्नह अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। तो मैं, मुझे अहले सुन्नत शायर हैं, मैं जब कहता हूं ना अपना या गैर, गैर से मुराद मेरी अहले सुन्नत नहीं होते, इसलिए कि जिसके दिल में अली है वो अपना है। बेशक बेशक बेशक। तो उनके बहुत खूबसूरत अशार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक, जो कुछ भी है मजलिस इमाम हुसैन का सदका है कि सारे मारिफ पहुंचते हैं। तो वो ये फरमाते हैं कि यजीद नक्शे जौर जफा बनाता है। वाह। और सुनिएगा, यजीद नक्शे जौर जफा बनाता है, हुसैन उसमें खत्ते करबला बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ यजीद ने किया आज, उसी मारिके में हुसैन ने वो काम किया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, उसी वजह से हिदायत का नूर सारी दुनिया में पहुंच रहा है। हुसैन उसी में खत्ते करबला बनाता है। यजीद मौसम इस्किया का ला इलाज मरज, हाय हाय, यजीद मौसम इस्किया का ला इलाज मरज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, और हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नतीजा है सारा साल जो तबलीग और प्रोपेगेंडा होता रहता है। यहां मुहर्रम का चांद आया और अशरा इमाम हुसैन शुरू हुआ। अशरा इमाम हुसैन मूसा का असा बनकर इन सारे यजीदियों के अजदहों को निगल लेता है। क्या कहने, क्या कहने, ये ताबीर पहुंच रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। यजीद क्योंकि हुसैन वारिस मूसा है ना, बेशक बेशक। लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, और हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। मैं हासिल कलाम जुमला कहने लगा और यहीं पर इंशाअल्लाह आपकी सदा नारा हैदरी से हम मसाइब पे चले जाएंगे। यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह, भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। उसी खातिर है वो जो मैं हदीस पढ़ रहा था कि मौला अली से मोमिन रखता है, वो सिर्फ जो मोमिन है वो मोहब्बत कर सकता है, मुनाफिक जो है वो अली से हमेशा बुग़्ज़ रखेगा। तो मोमिन होना शर्त है अली की मोहब्बत के लिए, लेकिन यकीन फरमाइएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए ये शर्त नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, हुसैन से मोहब्बत फकत मोमिन नहीं करते, साथ में आम इंसान भी, ईसाई भी कितने मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से। अनथन बारा ने किताब लिखी अल हुसैन फिल फिक्र अल मसीही, हुसैन इन द आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियनिटी।
اور اس کتاب میں سے لکھا لو کان الحسین لنا لجعلت له فی کل بلد منبرا ولندعو الناس الى دین المسیحیۃ باسم الحسین. اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم ساری دنیا میں ہر شہر میں حسین کے لیے ممبر سجاتے. ولندعو الناس الى دین المسیحیۃ باسم الحسین, اور ہم لوگوں کو مسیحیت کی طرف عیسیٰ کے نام سے نہیں حسین کے نام سے بلاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ مظلومیت کی طاقت ہے, کشش ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, علی سے محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, اور حسین سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. کیا کہنے ہیں بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں دیکھیں, کہیں کسی جگہ پر کہ جو ورس نمبر یہ اور چیپٹر نمبر یہ سنا رہا ہو, لیکن یزید کو کچھ رضی اللہ کہہ رہا ہو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. انسان ہوتا تو حسین کی محبت ہوتی دل میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ حسین سے محبت کے لیے کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے, سبحان اللہ, فقط انسان ہونا کافی ہے سبحان اللہ. خود کو محسوس کر سکے. بے شک بے شک. دیکھیں بس اختتام پہ جاؤں گا, آپ میں سے کوئی لبیک یا حسین کا ایک نعرہ لگا دے, میں اختتام پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ آج کی حد تک. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. علی حیدر. بس انتظار کریں, کل بھی ورکنگ ڈے تھا اور ہماری گفتگو بہت زیادہ طولانی ہو گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اب جو کم سے کم ورکنگ ڈیز ہیں آج اور کل پرسوں کی حد تک اسے 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ تک رکھوں. ہو سکتا ہے کہ پھر انشاءاللہ دوبارہ شب 8 شب 9 کو پھر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو اور کریں گے. اگرچہ کہ آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی سماعت بہت زیادہ بیدار ہے, لیکن بہرحال ایک تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہوگی. جب میں نے اسے دیکھا تو دل بڑا مغموم ہوا, اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت, اللہ اکبر, یعنی اس میں ایک درس بھی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی, فقیہ علی قدر, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, عصا لے کر چلتے ہیں, وہ بھی اتنی کمر جھکا کر. جب ہم ایران میں ہوتے تھے, شہر قم میں توفیق نصیب ہوئی تھی, اس وقت ایام فاطمیہ کے جلوس میں جاتے تھے, تو اس وقت بھی وہ چل نہیں پاتے تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں آج سے 10 سال سے بلکہ 12 سال پرانی. آج اللہ جانے اور کتنے ضعیف ہیں, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن ان کے گھر میں جو مجلس ہوتی ہے عزاخانے میں, باہر بیٹھ کر عزاداروں کا استقبال کرتے ہیں. اسے باہر چوکھٹ پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو کھڑا رکھا ہوا ہے کہ جو عزادار آئے اسے استقبال کرنا, اس کا احترام کرنا, اسے عزاخانے میں لے جانا. باہر جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں. فقیہ علی قدر, مرجع تقلید. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر, اے حسین کتنے مظلوم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آیت اللہ وحید خراسانی جو اس بات پر عمل کرتے ہیں وہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ خاطر ہے وہ. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ زہری نے مدینہ میں آ کر امام سجاد سے کہا تھا, کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا, بیمار کربلا سے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ میرے گھر میں شادی ہے, میرے بچے کی آپ تشریف لائیے گا. اللہ اکبر. شادی کے لیے اگر کوئی منع بھی کرے نا آنے سے, تو آپ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں کسی طریقے سے وقت نکال کر آئیے گا. لیکن زہری کہتے ہیں امام نے ایسا جواب دیا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا. امام نے کہا, اے زہری تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. اللہ اکبر. آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اپنی زندگیوں میں ایک طویل سجدے کو لے کر آئیے, اور سجدے میں آنسو اگر بہ جائیں تو کیا ہی کہنا, اور اگر نام امام حسین پر سجدے میں آنسو بہ جائیں تو پھر سجدے کی معراج ہے وہ. حسین پر رونا, خوف خدا سے رونا, یہ 2 گریے وہ ہیں کہ جو انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں. اور اے پروردگار, میں گناہوں میں اتنا لتھڑا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں پر معافی کی وجہ سے وہاں رونا نہیں آ پاتا, تو تو نے حسین جیسی نعمت مجھے عطا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بے شک جب میں حسین پر روتا ہوں تو خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں, پھر میں اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگنے لگتا ہوں. یہ ہے در حسین ابن علی. تو زہری نے کہا کہ مولا آپ میرے یہاں شادی میں تشریف لائیے گا. مولا نے کہا کہ اکبر کا کلیجہ جب سے دیکھا ہے
मेरी छोटी बहन सकीना को जब से तमाचे लगते हुए देखे हैं, ये सब कहा होगा, करबला का मंजर बयान किया होगा, लेकिन ये भी जरूर कहा होगा जोहरी अशाम अशाम। जोहरी जो शाम में हो गया ना मेरी पोपी ज़ैनब के साथ, अब हम किसी खुशी की तकरीब में जाते नहीं है। जोहरी ने जवाब सुना और सर झुकाकर चला गया। बात ही ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सका। एक दिन आया पलट कर दोबारा, कहता मौला मैंने अपने घर में आपके बाबा की मजलिस रखी है। ये जुमला मैं आप सबके लिए कह रहा हूं जो अपने अपने घरों में बैठकर इस मजलिस को सुन रहे हो, सुनना अब कलेजा कट जाएगा। और मुझे बेशुमार मोमिनीन ने, सिडनी से मोमिनीन ने कहा कि वो इज्तिमा बनाकर मजलिस सुन रहे हैं, हैमिल्टन से, न्यूजीलैंड से और तस्मानिया से, अल्लाह जाने दुनिया में कहाँ इज्तिमा बनाकर, इंडिविजुअली तो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, लेकिन इज्तिमा बनाकर यानी बाकायदा एक फर्श अदा बिछाकर इमाम बारगाह में स्क्रीन लगाकर, कैनबरा में मोमिनीन सुन रहे हैं माशाअल्लाह इमाम बारगाह में, इसी मजलिस अदा को। मौला हुसैन आपने अपने इस छोटे से खादिम पर बड़ा करम फरमाया है। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने फकत उताक में मजलिस इमाम हुसैन पढ़ूंगा, बस जितनी वो चाहेंगे आवाज पहुंचा देंगे, लेकिन आपने आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी। और ये मैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा जानता है, हुरूर के लिए नहीं कह रहा, इमाम हुसैन के शुक्राने के तौर पर कह रहा हूँ कि मौला आपने ये तौफीक नसीब फरमाई इस गरीब और हकीक। तो जोहरी ने कहा कि मौला मजलिस रखी, मौला ने कहा कि हाँ मजलिस है तो मैं आऊंगा, आपके घर मजलिस हो रही है ना इस वक्त, तो आप सोचिए कौन कौन आया हुआ है। सैयद सज्जाद मजलिस में तशरीफ ले गए। जोहरी कहता है कि उस जमाने में तो मजलिस होती थी, फकत मसाइब का बयान होता था ना, अशआर पढ़े जाते थे मरसिये की सूरत में। तो अभी अशआर पढ़ना शुरू किए थे किसी ने इमाम हुसैन इस्लाम के मसाइब पर, और बड़ा गिरिया हुआ। जाहिर है कि हम अपने घरों में बैठकर जब मजलिस सुनते हैं या इमाम बारगाह में जब सुनते हैं, इतना गिरिया होता है कि मजलिस में वो मौजूद हो जिसने शकीना को लगता है तमाचों को देखा हो। मजलिस तो मैंने मसाइब शुरू नहीं की, आपकी ये हालत हो रही है अल्लाह जाने। आज तो मुझे शरीकतुल हुसैन के 2 शहजादों का जिक्र करना है। मैं आऊंगा भी मसाइब पर। आज बनी हाशिम के शहीदों में से पहली कुर्बानी का जिक्र हो रहा है। अगरचे के शहीदाने करबला में जो बनी हाशिम की पहली कुर्बानियां हैं वो कुछ और है, लेकिन हमारी तरतीब के एतबार से आज औन और मोहम्मद का जिक्र होना है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए। जोहरी कहता है अभी मजलिस खत्म हुई तो मैंने देखा मौला सज्जाद अपनी जगह पर नहीं है। अरे मौला कहाँ चले गए? मैं तलाश करने लगा तो मैंने देखा जहां अज़ादारों ने अपनी जूतियां उतारी थी। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है, लेकिन मैं क्या करूं, जो किताब में मुझे वही पढ़ना है। जहां अज़ादारों ने अपनी जूतियां उतारी थी, मेरा बीमार इमाम वहां पर मौजूद है। मौला वहां पर बैठे हुए थे। जोहरी ने कदमों में झुककर कहा कि मौला मैंने तो आपको सदर महफिल में बिठाया था, आप यहां तशरीफ ले आए जहां सबने अपनी जूतियां नालैन उतारी हुई है। इमाम ने कहा, ए जोहरी तुझे क्या खबर, तू तो फकत ज़ाहिरी मजमे को देख रहा है ना। मैं देख रहा हूं जब से जाकिर ने मसाइब शुरू किए हैं, जन्नत से मेरी दादी फातिमा ज़हरा, मेरी दादी फातिमा ज़हरा वो इस मजलिस में आ चुकी हैं। हाँ सैयद कौनैन बैठी हूँ, मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं जूतियों के पास जाकर बैठ जाऊं। ये तो बीबी का करम है, बीबी का करम है कि वो उनकी जानिब से हमें इज़्न और इजाजत मिलती है कि हम फर्श अज़ा पे जाके बैठे। हम जैसा गुनाहगार खताकार वो मिंबर पर जाए और अज़ादार फर्श अज़ा पे बैठे, ये बीबी की जानिब से इज़्न होता है। वरना बीबी जब आके बैठती है तो इमाम ज़माना अल्लाह जाने कहाँ बैठते हैं, मैं कह नहीं सकता फिर से। अल्लाह अकबर। तो शायद इसीलिए फकीह अली कदर हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी उन्होंने वहां बैठना मुनासिब समझा, बाहर जाकर, कि मैं सुन्नत सैयद सज्जाद पर अमल करूं।
अजीजों, बस आप जिन हस्तियों को रोने के लिए आज मौजूद है और दिल आमादा है, शहादत तो सबकी हुई है आशूर के दिन, लेकिन दिल जिससे मंसूब हो जाते हैं ना, उसके बाद दिल तड़प रहा होता है कि बस कब मौलाना उनका नाम ले। अभी तो नाम हम लेते हैं और मोहम्मद क्या शुरू हो जाता है। अजीब तासीर है इन नामों में, कुछ कहने की जरूरत नहीं, फकत कलेजे में बच्चे कह दो काफी है रोने के लिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, फकत हुरमला का तीर कह दो काफी है रोने के लिए। हर बनी हाशिम की जो कुर्बानी का जिक्र होगा कल इंशाअल्लाह, शबी रसूल अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत। आज भी मजलिस के बाद इंशाअल्लाह जब मातम हो रहा होगा, नौहा पढ़ा जा रहा होगा, तो आप साथ रहिएगा, इसलिए कि 2 मकामात से शायद ताबूत आपको दिखलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ताबूत औला मोहम्मद, और जब छोटे छोटे ताबूत देखोगे ना और इस पर छोटे छोटे से अम्मामे होंगे तो समझ जाना कितने छोटे थे ये बच्चे। इतने छोटे बच्चे इस काबिल होंगे? हाँ, लेकिन हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। देखिए, और मोहम्मद हम 7 नाम लेते हैं। अली अकबर का जिक्र करेंगे अलग से, अली असगर अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे अलग से, शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा अलग से, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा अलग से। लेकिन और मोहम्मद ये नाम ऐसे जोड़ गए साथ में। जनाब हसनैन अकबर मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, वो कहते हैं कि गले यूं औन मोहम्मद मिले थे मख्तल में, हाय हाय हाय, गले यूं औन मोहम्मद मिले थे मख्तल में कि मोजज़ों के गले जैसे मोजज़ात मिले, 1000 सदियां भी कुछ फासला बना न सकी कि नाम औन मोहम्मद के साथ साथ मिले। आज इनका नाम एक साथ लिया जाता है। ईरान में तो मारूफ है ये दोनों शहजादे तिफलाने ज़ैनब के नाम से। जैसे तिफलाने मुस्लिम इब्न अकील है ना, वैसे ही तिफलाने ज़ैनब। तिफलाने मुस्लिम उम्मुल बनीन के नवासे हैं, तिफलाने ज़ैनब फातिमा ज़हरा के नवासे हैं। और नानी के दिल में खास मोहब्बत होती है नवासों के लिए। आज फातिमा ज़हरा को पुरसा पेश करना है। कभी कभी तो मोहब्बत जो नानी के दिल में होती है वो औलाद से भी ज्यादा बढ़ जाती है अपने नवासों के लिए। आज बीबी की खिदमत में पुरसा पेश करना उनके मासूम नवासों का। 7 और 8 बरस के बच्चे हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, वो जब मदीना से काफिला चला था ना तो उस वक्त साथ नहीं थे, बहुत ही ज़ईफ थे, आंखों से भी बहुत कम नजर आता था। लेकिन जब ये मक्का पहुंचा और वहां से आगे मकाम तनईम तक पहुंचा था, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आगे साथ साथ पीछे आ रहे थे। अभी कुछ चला था काफिला आगे के, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ये काफिला रोक दीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ रहा है। बड़े ज़ईफ थे, हाथों में असा है और अल्लाह जाने क्या कहते हुए, शायद या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हुए आगे बढ़ रहे हो। पहुंचे इमाम हुसैन के पास, कहा कि आका अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी ज़ौजा बीबी ज़ैनब कुबरा से कुछ कलाम करना चाहता हूँ। कहा है अब्दुल्ला वो आपकी ज़ौजा है, आपको हक है कि आप बात कीजिए। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार पहुंचे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास, पहुंचकर कहा कि ए बीबी, अभी तो सलाम और कलाम हुआ था कि बीबी ने पलट कर कहा, है अब्दुल्ला अगर आप मुझे वापस लेने के लिए आए हैं सुन लेना, इस पे रो लेना, फिर अब जब अगले बरस होंगे तो मोहम्मद का मातम होगा, फिर अगले बरस ताबूत होगा, इंशाल्लाह मेरी आवाज जा रही होगी, आप अपने घरों में बासदाए बुलंद या हुसैन कहकर रो रहे होंगे, आपके दरो दीवार से या हुसैन की सदा आ रही होगी। बस अपने घर के आलम को देखते जाना, अपने घर के बरेरे, उस आलम के बरेरे को, उस मकाम को कि जहां पर आपने या हुसैन लिखा हुआ है, उस मकाम पर के जहां आजादारी के लिए इहतमाम किया हुआ, उसे देखते जाना, या हुसैन कहकर रोते जाना और कहते जाना मौला इस बार मुहर्रम बड़ा गुर्बत में गुजरा, लेकिन आपका शुक्र है मौला फर्शी अज़ा नसीब कर दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए अब्दुल्ला अगर आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो मैं वापस तो चलूंगी, इसलिए कि ज़ौजा पर वाजिब है शोहर की इताअत, लेकिन मैं यहां से ज़ैनब जिंदा तो नहीं जा सकेगी, ज़ैनब का जनाजा ही यहां से वापस जाएगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा है बीबी आप मेरी ज़ौजा जरूर हैं, लेकिन मुझे आपका मकाम मालूम है, आप फातिमा ज़हरा की बेटी हैं, मैं आपको कोई हुक्म नहीं करने आया, आपका मकाम, आप मेरी ज़ौजा है, लेकिन आप सैयदतुन निसाइल आलमीन की दुख्तर है।
میں تو فقط آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. جد کی حدیث یہ ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا تھا جب مشکل سفر پر جاؤ تو کوئی صدقہ دے دیا کرو. میرے مولا حسین تو بڑا مشکل وقت ہے, میں سامان صدقہ لے کر آیا ہوں. جب بھی کہیں حسین پر کڑا وقت آ جائے, ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اللہ اکبر. تو اب تک جی بھر کر نہیں رو پائے, مجھے یقین ایسا کوئی نہیں ہوگا, لیکن اور مزید کریے میں اضافے کے لیے. دیکھو تم بھی تو صاحب اولاد ہونا, اپنے 7-8 برس کے بچے کو دیکھنا, ان کے لیے سوچنا اور سوچنا کتنے معصوم سے بچے تھے کہ جو تلواروں کے درمیان, جو نیزوں کے درمیان, جو برسیوں کے درمیان گئے تھے. اور محمد سامان صدقہ بن کر آ گئے. یہ جملہ دل میں رہ جائے گا. اور محمد سامان صدقہ بن کر بی بی نے ساتھ لیے تھے حسین پر صدقہ کرنے کے لیے. اور بس شب عاشور جب آ گئی اور ماں اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے, میں اب چشمے تصور سے سوچتا ہوں, کچھ خیال دل ہے, کچھ زبان حال ہے, کچھ واقعات ہیں علماء سے جو استفادہ کیا ہے. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بٹھایا ہوگا نا اول محمد کو, کہہ رہی ہوں گی بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, ایسی جنگ لڑنا کہ تمہیں کہنا ہی نہ پڑے, تمہارا جنگ ہی تمہاری تعارف بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 2 باتیں سکھلائی ہوں گی. یعنی کیا کہہ رہی ہیں بھی, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. اور بی بی نے کہا کہ دیکھو میری 2 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات, جو تمہارے ماموں کا دشمن ہے اگر تمہارے سامنے سے بچ گیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ لڑتے لڑتے جب فرات کا پانی سامنے آ جائے تو یاد رکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے. جب بھی فرات کا پانی سامنے آ جائے یاد رکھنا حسین کا علی اصغر پیاسا ہے. عزیز عاشور کا دن آ گیا, بار بار جاتے ہیں اور محمد جاتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے. دیکھیں ماموں اور بھانجے کا بھی بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا, اور حسین جیسا ماموں ہو اور محمد جیسے بھانجے ہو. ایک مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ چادر اوڑھ کر آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس, کہا بھیا بہن نے آپ سے آج تک کچھ مانگا نہیں ہے, فقط میں ایک التجا کر رہی ہوں, میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. دونوں بہن اور بھائی گلے مل کر اتنا روئے. ایک عجیب کوہرام بابا تھا. محمد بی بی کی جانب سے صدقہ بن کر چلے. عباس نے اپنے بھانجوں کو گود میں اٹھایا, زین پر سوار کروایا. علی و صاحب اولاد ہونا تھا کرنا, سینہ پیٹنا, خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے, خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, خدا آپ کی اولادوں کو اولا محمد کا صدقہ قرار دے. پہنچے, ایسا عظیم الشان جہاد کیا ہے, زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے. ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے. فوجیں پکار رہی تھی یہ 7 اور 8 برس کے ہیں لیکن حیدر کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, انہیں گھیر کر مارو. بے پل جنگ کی خاندان بنی ہاشم سے, لیکن 3 دن کے بھوکے بھی تھے, 3 دن کے پیاسے بھی تھے. جنگ لڑتے لڑتے ان ظالموں نے 2 بچوں کو گھیر لیا, بچے گرے, کہا مامو عباس, مامو حسین, ہمارا سلام قبول کرو. عزیزوں کلیجہ کٹ رہا ہے, میں آگے کیا کہوں.
कलेजा कट रहा है यहाँ पर भाई, कसम अजीब कैफियत है भाई। जब अब्बास पहुंचे, जब हुसैन पहुंचे, दोनों बच्चे खून से लिपटे हुए अपने हाथों को हुसैन के लबों तक ले जाते थे, जैसे कानों में कुछ कहना चाहते हो। हुसैन ने कहा, बच्चों क्या कहना चाहते हो? कहा, मामू जब हमें खेमों में ले जाइएगा तो अम्मा से कह देना, अम्मा हमने पानी नहीं पिया अम्मा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन। या हुसैन, या हुसैन।